کوئی بھی مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے۔ آپ 2 مرتبہ کہیں گے 2 درخت لگیں گے، 10 مرتبہ کہیں گے 10 درخت لگیں گے۔ نہ آپ کو سنچائی کی ضرورت، نہ آپ کو پانی پلانے کی ضرورت، نہ آپ کو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت، نہ آپ کو چھینے لگانے کی ضرورت، نہ آپ کو تار بندی کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں۔ آپ بولتے جائیں، اللہ تمہارے لیے جنت میں باغ لگا دے گا۔ یہ علماء کرام کہتے ہیں۔ تو ہم ایسا کام نہ کریں، ہم ایسا کام نہ کریں۔ پھر آپ کو کہا جائے اب بولیں تب بولے نہیں۔ مومن مسلمان اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور، اور دوسری بات سنیں، آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل یہ خطہ اس زمین کا ٹکڑا جہاں بیٹھے ہیں ہمارے لیے جنت میں گواہی دے گا، حشر میں گواہی دے گا کہ یہ بندگان خدا فقط اس لیے بیٹھے تھے، صرف اس لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے۔ ہم اپنے گاؤں میں کام کریں اور جگہ سب کچھ کرتے ہیں، یا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، ہم نماز سیکھیں گے، ہم کلمہ سیکھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، غوث پاک کی زندگی کیا ہے، غیبات کی زندگی کیا ہے، بزرگان دین کی زندگی کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے۔ یہ ہم یا سنیں گے یا بیٹھیں گے۔ آپ سنیں گے نہیں، آپ بیٹھیں گے۔ اب آپ آئے، باہر آئے، کچھ لوگ بے مقصد کے باہر بیٹھے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ اندر آئے، اب یہاں کر کے بیٹھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو پسند ہے یا نہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں کام اپنی زندگی میں سب کچھ کرتے، جب تک زندہ ہے ہم کریں گے۔ انسان کام کرے گا، بزنس کرے گا، دھندا کرے گا، کاروبار کرے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا سید نور اللہ شاہ قبلہ، علماء اہل سنت، سادات کرام، آپ لوگ آپ تشریف لائیں۔ اب بس تھوڑی دیر ہے، آپ لوگ تشریف لے کے آئیں، آگے آ جائیں، جو باہر کھڑے ہیں اللہ کے واسطے آ جائیں۔ تشریف رکھیں، سبحان اللہ، درود و پاک پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ۔ بار حضرات جو کھڑے ہیں اللہ کے واسطے آ جائیں، آپ اندر آ جائیں۔ یہاں جتنے حضور کی محفل میں آگے رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کالی کملی میں اتنے ہی آگے رہو گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ کو بولانے کی ضرورت نہیں، آپ بولتے رہیے۔ اب آپ کو میں نے یہ بات بتا دی ہے کب بولنا ہے آپ کو، یا ہم بار بار آپ کو یہ چیزیں نہیں کہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جنت پہ باغ لگ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، تو آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ بولتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کامیاب و کامران رہے گی۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پلا دیتے ہیں پانی پیاسوں کو، وہ جنگلوں میں بھی پلا دیتے ہیں پانی پیاسوں کو، ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ وہ زمین و آسمان نہیں رہتا اپنے قابو میں، تڑپ کر جب کوئی محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب کوئی محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے، ہم اپنی زندگی میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کھانا کیسے چاہیے، ہمیں پینا کیسے چاہیے، ہم کس طریقے سے کھائیں، ہم کس طریقے سے پیئیں۔ میں نے آپ کو بتائی نا، آپ صرف سارا جو کچھ دار و مدار ہے آپ کی نیتوں پر ہے۔ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے یہ سوچ کے روانہ ہوئے کہ جلسہ ہوگا، علماء کرام آئیں گے، بھیڑ بھاڑ ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے تو آپ کو اتنا ہی ملے گا۔ مگر آپ وہاں سے چل کر کے آئے کہ علماء کرام کی زیارت کریں گے، اللہ اور اس رسول کی باتیں سنیں گے تو آپ کو قدم قدم پہ ثواب ملے گا۔ بس یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، ہر جو کام تم کر رہے ہو، ہماری زندگی میں ہر جو کام کرتے ہیں، آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ بکریاں چراتے ہیں، ہم بکریاں چراتے ہیں،
पैसा एक तो हमारी ये नियत जो आपने मेहनत की है, बकरी पाली, ऊंट पाला, गाय पाली, जो कुछ भैंसा पाला हमें मिलेगा, मगर उसी में हमारी ये नियत हो कि बकरी पालना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मैं बकरी इसलिए पालूंगा कि मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, तो अब मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपको कारोबार में बरकत भी मिले। बस नियत बदलनी है। तो ये जलसे जो कर रहे हैं, ये जो खिताब होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव पैदा करें। जब हमने कुछ हासिल ही नहीं किया, उलमा इकराम इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमने कुछ हासिल ही नहीं किया, हम अपनी जिंदगी में बदलाव ना पाए तो कुछ नहीं है। ये जिंदगी निकल जाएगी, ये 2 दिन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छे अच्छे लोग थे और मर के चले गए, खत्म हो गए, आज उनकी कब्रों का निशान नहीं है। मगर जिनने अल्लाह उसके रसूल को याद किया, आज उनकी कब्र पर फूल बरसते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि कल जब दुनिया में रहीं तब भी लोग हमें याद करें, और दुनिया से जो चले जाए ना तब भी लोग हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे। अल्लाह का नेक इंसान इस गांव में रहता था, जब तक ये रहता था तब तक सुकून रहा करता था। अल्लाह इनकी कब्र पे रहमत की बारिश अता फरमाए। हमारी जिंदगी में ये काम करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव पैदा होते हैं खुद आप महसूस करेंगे। कुछ ऐसा कर जाए, हमारी जिंदगी में आए तो कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद करें। लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, मर जाएंगे कुछ। हाथ सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, तो लोग कहते हैं ना कि सिकंदर बादशाह था, हमारी आपकी तरह नहीं, बहुत बड़ा बादशाह था। कहते हैं कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन चला गया खाली हाथ। आप लोगों ने सिकंदर भी खाली हाथ गया। मगर एक बात याद रखें, लोग सिर्फ सिकंदर की ही मिसाल क्यों देते हैं? दूसरे नहीं मरे क्या? उसका ही नाम क्यों लेते हैं कि वो खाली हाथ गया और नहीं मरे क्या? लेकिन याद रखें, उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि लोग आज याद करते होने। कुछ ऐसा उसने किया था, कुछ ऐसा भी उसने भी किया था कि जिसे लोग भी आप याद। हमारी जिंदगी में ये कुछ हम ऐसा कर जाएं कि जब तक जिए तब भी लोग हमारी कदर करें, और जब मरे तब भी लोग हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ने पे राजी हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी। नमाजों की पाबंदी, उलमा इकराम बैठे हैं, सैयद साहब की बिला भी तशरीफ लेके आए, इसलिए मेरे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है मैं ज्यादा बोलूं, इसलिए बस थोड़ी ही देर में अपनी बात को खत्म कर देता हूं। अल्लाह के वास्ते आप कुछ नेक काम करें इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला, देखो इंसान जिंदगी में देखे, एक बड़ा इंसान रहता है, छोटा रहता है, गरीब रहता है, अमीर, रब सबको देता है। रब सबको देता है, अल्लाह सब पे मेहरबान। चोर को भी देता है, साहूकार को भी देता है, डाकू को भी देता है, सबको देता है, देता है नहीं देता। मगर हमें अपनी कब्र में जाना है, हमें कुछ क्या करना है कि ये पड़ोसी वाला नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। वो अपनी कब्र में जाएगा, हम अपनी कब्र में जाएंगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं अल्लाह के, आपने उलमा इकराम से सुना होगा, बहुत बड़े वली गुजरे। वो दरिया के किनारे पर आप सैर कर रहे थे, दरिया दजला के किनारे पर सैर कर घूम रहे थे, चल रहे थे, टहल रहे थे सुबह सुबह। आपने देखा कि बिच्छू बड़ा खतरनाक है। आपने पत्थर उठाना चाहा और उसको मारना चाहा। जब पत्थर उठाया उसकी तरफ बढ़े तो बिच्छू भागा, और बिच्छू दौड़ा दौड़ा समंदर के किनारे पर जाके रुका, तो वहां से समंदर से एक कछुआ निकला, और जब कछुआ वहां से निकला तो बिच्छू उस कछुए पे सवार हो गया। अब ज़ुन्नून मिस्री ने देखा कि बिच्छू सवार कछुए को, कछुआ तैरने लगा। दूसरे किनारे पे जाके कछुआ रुका, बिच्छू जो उससे उतरा वो जंगल की तरफ। अब ये अल्लाह का वली उसके पीछे हो गया, ये माजरा क्या है, उसके पीछे हो लिया। वो बिच्छू जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद कुछ बड़े चटजल मैदान के अंदर देखता है कि एक इंसान बेसुध सोया हुआ है शराब के नशे में, और बिच्छू उसके ऊपर एक सांप है, जो सांप अज़दा जो है मुंह खोले हुए उसके लिए मौत बना हुआ है, बस उसको डसने वाला था, उसको काटने वाला था। बिच्छू ने सांप के डस मारा, जिसकी वजह से सांप तड़पने लगा, और सांप एकदम टुकड़े टुकड़े होने लगा। उसका जिस्म जो है, सांप का जो है शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगा। जब ये इस तरीके से होने लगा, जब ये माजरा ज़ुन्नून मिस्री ने देखा, तो उस अल्लाह का जो बंदा जो शराब के नशे में बेशुद्ध जो सोया हुआ, तो उसको जगाया, उसके मुंह पे पानी छिड़का डाला, पानी का जो छिड़काव किया उसको जगाया। वो जगाने के बाद में उसको सारा मंजर सुनाया कि तू ये सांप जो तेरे ऊपर है, ये सांप तुझे डसने वाला था, मेरे बिच्छू को देखा, उसके पीछे में लगा, वो बिच्छू कछुए पे सवार हुआ, कछुआ ने यहाँ के किनारे पे छोड़ा, बिच्छू फिर जंगल में आया, सांप तुझे काटने वाला था, सांप को बिच्छू ने डसा। अगर ये बिच्छू न डसता है सांप को तो तुझे आज जो है सांप खत्म कर देता। जब ये उस इंसान शराब के नशे में, शराबी इंसान ने जब ये कहानी सुनी तो चीखें मारने लगा, वो सजदाए शुक्र अदा किया कि मेरा रब, तेरी इज्जत जलाल की कसम, मेरे मालिक और मौला, जब तू मुझ जैसे गुनहगारों पर, शराबियों पर इतना मेहरबान है तो तेरे नेक बंदे पे कितना मेहरबान हो। सुभान अल्लाह।
तेरे वलियों पे तू कितना मेहरबान होगा, तेरे नेक बंदों पे तू कितना प्यार करता होगा, जब मुझ जैसे बंदों पर तू इतना। उसके बाद कहा कि मालिक मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज से मैं तौबा करता हूं, तेरी बारगाह में सजदे झुकाता हूं, तेरी बारगाह में सर झुकाता हूं। बंदो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी जो है कुछ ऐसी बन जाए कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव पैदा करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अल्लाह के वलियों की जो महफिलें सजाते हैं, अल्लाह के वलियों के जो जलसे करते हैं, ये रब के बंदे हैं, ये रब के महबूब हैं, जिन्होंने अपनी सारी दुनिया को खत्म कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल से नो लगा ली। आपने निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, इनके पीर मुर्शिद है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। वो एक मर्तबा जो है पूरे जोश और जलाल में थे और कहा कि निजामुद्दीन सुन, पता मुझे कि तू मोहित बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है। जलाल में थे पीर साहब किबला का, बोल आज मेरे मुरीद बोल, जो तू बनना चाहेगा मैं तुझे बना दूंगा। तो निजामुद्दीन ने कहा कि हुजूर पीर साहब किबला, एक मेरी अर्ज है कि ये बात बड़ी है, मगर मेरे पीर मुर्शिद मगर मैं मेरी अम्मी जान से मैं ये बात पूछ के आऊंगा कि मुझे बनना क्या है। तो कहा कि ठीक है चला जा। अब रास्ते में निकले, अब गए, अपना घर दूर था, अम्मी दूर थी। एक दिन का सफर हुआ, दूसरे दिन रास्ते से कहीं गुजर रही थी, एक मजलूम बंदा अल्लाह का वली जो लेटा हुआ है, आपने उसको सलाम किया और सलाम करने के बाद में गुजर गए। और जैसे ही सलाम करने के बाद गुजरे, निकले, आगे निकले, वो अल्लाह का वली मजलूम मुस्कुराया और कहा कि निजामुद्दीन महबूब बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है। उसने कहा, निजामुद्दीन ने कहा, ये बात तो मेरे और मेरे पीर के दरमियान की बात थी, मगर इस अल्लाह के बंदे को कैसे पता चल गया। बहरहाल कहा कि हुजूर आप ही बताएं मैं क्या बनना चाहता हूँ। कहा नहीं नहीं बेटा, चले जाओ अपनी अम्मी से पूछ के आओ, वही बताएगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली जो होते हैं अपने दिलों पर राज करते हैं। अल्लाह के वली की महफिल में जो बैठे हैं, वो से पाक की महफिल में बैठे हैं। इनके हजारों मजमे में लोग हुआ करते थे और जब गौस पाक तशरीफ लाते सारे लोग खड़े हो जाते। एक मर्तबा खड़े न हुए, लोगों ने पूछा हुजूर क्या बातें हैं, आज खड़े न हुए। पीर ने कहा कि ये जो बंदे बैठे हैं इनके दिलों पर मेरी हुकूमत है, चाहो तो उठने दो और चाहो तो ना उठने दो। इतना कहना था, सब लोग खड़े हो गए। वो पाक ने कहा कि देख ले, ना उठने का मंजर देख लिया, अब उठने का मंजर भी देख ले। तो अल्लाह के वली दिलों के हाल को जानते, बहरहाल गए अपनी मम्मी के पास और मम्मी से सारे अपने खिदमत की। और उसके बाद में जब रात को कहा अम्मी जान आज तो पीर साहब किबला ने जो है ऐसी ऐसी बात बताई, तो कहा कि बेटा ऐसा करे। फिर आपने बीच की बात बताई कि मुझे एक अल्लाह का वली नेक बंदा मिला, उसने ये कहा। तो कहा कि बेटा सुबह नाश्ता करें, उसके बाद में चले जाएं आप, और जो उन्होंने कहा है वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, कह दो सुभान अल्लाह, उन्हीं से जाकर के कह देना। अब ये सुबह को नाश्ता करने के बाद में मां से इजाजत लेकर के वापिस आए। वापिस आकर के देखा तो वो मजदूर बंदा जो था ना, वो वहां था ही नहीं, वो वहां से गायब। तो इधर उधर लोगों से पूछा, कहा कि भाई कल यहाँ जो बंदा लेटा हुआ था मजदूर, वो कहाँ है। तो कहा उनका क्या पूछते हो, वो तो फकीर आदमी था, उसका तो कल ही इंतकाल हो गया, कल ही खत्म हो गए। तो कहा कि भाई उनकी कब्र कहाँ है, मुझे कब्र तो बताओ। तो उनकी कब्र कहाँ आएगी, वो तो फकीर आदमी था, लोगों ने किसी के जो है कूड़े पे जाके डाल दिया, बाहर कूड़े करकट पे जाके डाल दिया है। और उधर कहीं होगा पड़ा हुआ, देख लो, ये गए वहां। कौन? निजामुद्दीन औलिया गए वहां। वो जो वली अल्लाह का जो इंतकाल कर चुका था, लोगों ने जाकर कूड़े पे डाल दिया था ना, उनके पास खड़े होकर कहने लगे कि खुद तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुहित बनना चाहते हो या महबूब, और खुद का तो पता भी नहीं है कि कल क्या होने वाला है। इतना कहना था, वो अल्लाह का बलूच बैठा, सुभान अल्लाह, खड़ा हो गया। कहा निजामुद्दीन अगर मोहित बनोगे तो ये हाल होगा, न कब्र का पता होगा न कफन का पता होगा, और अगर महबूब बनोगे तो लोग तुम्हारे कब्रों पर मेले लगाते नजर आएंगे। तो मेरे भाई, इन अल्लाह के वलियों की महफिल में बैठे कुछ ऐसा अहद कर दें आप कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है, हमें नमाज पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखें, ये जलसे जुलूस प्रोग्राम, ये देगे, ये सारा सब कुछ जो है ना, ये अपनी जगह है, मगर पहले ये पूछा जाएगा कि नमाज कितनी पढ़ी। फिर साहब के बिलावी बैठे आप पूछे, पहले हिसाब जो होगा नमाज से होगा, कितनी पढ़ी तूने, कितनी नमाजें पढ़ी है। नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह
اللہ کا جو محبوب بندہ بنتا ہے، رب کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ اسے توفیق بخشتا ہے، اسے اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے، ہم پڑھتے نہیں، اللہ جسے توفیق بخشتا ہے وہ بندہ سر جھکاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت، بندے کا حساب و کتاب نماز سے شروع ہوگا۔ یہیں سے جب پہلے جب ڈائری کھلے گی نا رجسٹر، وہیں سے ہوگا اول، سب سے پہلے بندے کا حساب یہیں سے نماز کہ نماز کتنی پڑھی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق بخشے۔ رب غفور الرحیم، اس اللہ کے نیک ولیوں کی مجلس میں ہم یہ اللہ رب العزت یہ ہمیں توفیق بخشے۔ میرے مالک و مولا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ میرے مالک و مولا ہمارے دلوں کے حضور تو ختم کر دے، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دے۔ میرے مالک و مولا ہمیں وہ زندگی دے اور وہ زندگی گزاریں جب تک جیے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اس کی اطاعت میں گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے نبی کی عظمت کعبہ سے پوچھئے، میرے نبی کی عظمت کعبہ سے پوچھئے، ابو عبیدہ سے پوچھئے، ابو بکر عبیدہ سے پوچھئے، پشت نبی پہ مہر نبوت کو چوم کیا لطف مل رہا تھا۔ عکاشہ سے پوچھئے کیا لطف مل رہا تھا۔